Hello students, so in this lecture we would be talking again about the scientific names or the nomenclature. Okay, previous lecture में जो बात करी थी, okay, अभी थोड़ा और डिटेलिंग में इसे देखेंगे as we are preparing for the competitive exams, so detailings are very important. ठीक है, so I'll start with the nomenclature again or the scientific names again. So I'll define the nomenclature again. What is nomenclature? Okay, so nomenclature can be defined as the process of giving specific name. Process of giving specific name to the organism. Process of giving specific name to the organism which is common all over the world. पूरे वर्ल्ड में वो कॉमन रहना चाहिए. ठीक है, so the process of giving specific name to the organism which is common all over the world, that is termed as nomenclature. ठीक है, in the previous lecture we were talking about the vernacular names. Okay, so vernacular names क्या होते हैं? तो vernacular names तो common names होते हैं और vernacular names change होते रहते हैं from place to place, from different places. Okay, you get different names of different organisms, so they are not applicable, they cannot be used at the international level or the world level. So that is the reason we have come up with the scientific names. That is the reason we have come up with the scientific names. ठीक है, तो scientific names की अगर बात करते हैं तो scientific names are given by the biologist. They are given by the biologist based on fixed criteria and criteria. ठीक है, and it is, और जो नाम जो होते हैं these are universally applicable. The names are universally applicable, कहीं पे भी ये नाम चलने वाला है. ठीक है, so this is the importance of a scientific name. So for example, अगर मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने कोई प्लांट का नाम लिखा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if I'm researching on a mango, तो मैंने मैंगो का नाम लिख दिया मेरी रिसर्च बुक में कि आई हैव रिसर्च ऑन मैंगो. अब ये रिसर्च बुक जो होती है दैट इज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड. ओके, सो एनीबडी इन द वर्ल्ड कैन रीड दैट बुक. तो अगर कोई बंदा फ्रांस में बैठ के मेरी बुक पढ़ रहा है या कोई जर्मनी में बैठ के बुक पढ़ रहा है, ओके, तो वो बोलेगा मैंगो प्लांट, तो हिल गेट कंफ्यूज कि यार मैंगो प्लांट क्या होता है. मे बी मैंगो वुड बी टर्म्ड एज समथिंग एल्स इन देयर प्लेस. ठीक है, सो आई नीड टू कम अप विद अ स्पेसिफिक नेम. Okay, I need to come up with a name which is common all over the world. So that is the scientific name. That is the scientific name. समझ में आ गया? तो कुछ ऐसा नाम चाहिए जो common हो पूरे world level पे. It should not change from place to place. So universally applicable होना चाहिए. Clear है? So scientific names में we have two patterns. We have binomial nomenclature. And we have trinomial nomenclature. So we have binomial nomenclature and trinomial nomenclature. ठीक है, bi is giving two names to an organism. Binomial का मतलब होता है, bi का मतलब है दो. Okay, so दो नाम देना organism को, and trinomial is giving three names to the organism. That is giving three names. So we'll talk about it later on. Okay, now moving ahead. The whole concept or the idea of naming an organism with a scientific name. The whole concept and idea of naming an organism with a scientific name was proposed by the scientist or the botanist, that is Caspar Boheen. ठीक है, तो मैं लिखता हूं प्रपोजल किसने दिया था.
So proposal was given by the scientist Caspar Bohin. ठीक है, he proposed it. Proposal was given by the scientist Caspar Bohin, और उन्होंने क्या बोला कि यार इस तरीके से साइंटिफिक नेम्स देने चाहिए जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे कॉमन होना चाहिए, इससे काफी सारी प्रॉब्लम्स हट जाएगी. एंड ही गेव दिस प्रपोजल इन हिज बुक. ओके, उसके बुक का नाम था पाइनेक्स. ओके, ही गेव इट इन द बुक पाइनेक्स in the year 1623. In the year 1623. तो 1623 में जो बुक आई थी पाइनेक्स नाम की, which was written by Caspar Bohin, तो उस बुक में कैस्पर बोहिन ने प्रपोजल दिया था कि यार साइंटिफिक नेम्स या ऐसा कुछ होना चाहिए जो कॉमन हो वर्ल्ड लेवल पे. ठीक है, नाउ इस बुक को गो थ्रू करने के बाद एक दूसरा साइंटिस्ट दैट इज कार्लस लीनियस, अनदर साइंटिस्ट दैट इज Carlos Linnaeus came up with the idea. He came up with the idea कि यार ठीक है ऐसा कुछ करेंगे, किस तरीके से करेंगे. तो उसने अपनी एक बुक थी दैट इज फिलोसॉफिका बॉटनिका. Philosophica Botanica, which came in the year 1751. Which came in the year 1751. और उस बुक में he set up some rules and principles. Okay, जिसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं आप, नामकरण कर सकते हो, आप साइंटिफिक नेम्स दे सकते हो. So the principles were given or the rules were set in the book which was launched in the year 1751, and the name of the book is Philosophica Botanica. ठीक है, सो प्रपोजल कौन सी बुक में, पाइनेक्स में, बिकॉज सी वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो छोटी छोटी डिटेलिंग्स है, कौन सी बुक किसने दी थी, कौन सी बुक में क्या था, ओके, द बेसिक कंसेप्ट, द बेसिक आइडिया शुड बी वेरी वेरी क्लियर. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर बात होती है नोमेनक्लेचर की तो किसने नोमेनक्लेचर दिया, तो आप ये नहीं बोलोगे कैस्पर बोहिन ने दिया. कैस्पर बोहिन ने नोमेनक्लेचर नहीं दिया था, उसने सिर्फ प्रपोजल रखा था किस तरीके से करते हैं. द एक्चुअल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस. ठीक है, सो प्रिंसिपल सेट किए थे उन्होंने, कौन सी बुक में, फिलोसॉफिका बॉटनिका में उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए किस तरीके से आप नामकरण कर सकते हो, नोमेनक्लेचर कर सकते हो. ठीक है, देन उनकी एक और बुक आई, ओके, और उस बुक में उन्होंने क्या किया, उनने साइंटिफिक नेम्स दिए, यूज किया, साइंटिफिक नेम्स का यूज किया. मैं यहां पे लिखता हूं यूज्ड साइंटिफिक नेम्स. ठीक है, और साइंटिफिक नेम्स को उन्होंने यूज किया और उन्होंने साइंटिफिक नेम्स दिए प्लांट स्पीसीज के. कितनी प्लांट स्पीसीज के साइंटिफिक नेम दिए उन्होंने, सो ही नेम्ड 5900 प्लांट species. He named 5,900 plant species in his book known as Planetarum, Species Planetarum. The name of the book is Species Planetarum. ठीक है, समझ में आया. Clear है? And this book came in the year 1753. This book came in the year 1753. ठीक है, सो कार्लस लीनियस ने एक दूसरी बुक भी लॉन्च करी जिसका नाम क्या है, स्पीसीज प्लैनेटरम नाम है बुक का. ठीक है, और उस बुक में दैट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1753, और उस बुक में उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइंटिफिक नेम्स यूज करे
and he named 5,900 plant species. Clear है? ठीक है? So I hope this is clear कि यार proposal कौन सी book में था? Proposal था in the book Pinax given by Caspar Bohin in the year 1623. फिर rules, principle, scientific names के setup किए गए. कौन सी book में थे? Philosophica Botanica in the year 1751. It was given by Carolus Linnaeus. ठीक है? और फिर जो बुक आई 1753 में जिसका नाम है स्पीसीज प्लैनेटरम, उनमें कार्लस लिनियस ने क्या किया? उन्होंने साइंटिफिक नेम्स को यूज किया एक्चुअल में, और उन्होंने 5,900 प्लांट स्पीसीज को, स्पीसीज के साइंटिफिक नेम्स उस बुक में दिए थे. ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो एक और बुक उन्होंने लॉन्च करी थी. वन मोर बुक वाज लॉन्च्ड. ओके, तो आई हैव टू रब दिस. मैं ये ऊपर वाला कैस्पर बोहिन को हटा देता हूं यहां से. तो सेकेंड बुक वॉज यूज्ड. It was again given by Carolus Linnaeus. ठीक है, और यहां पे he gave, मैं फिर से लिख देता हूं, used scientific names. He used scientific names. ठीक है, कितने साइंटिफिक नेम्स दिए? तो 4326 एनिमल स्पीसीज. ठीक है, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है. एनिमल स्पीसीज के नाम दिए. ओके, एंड द बुक वाज नेम्ड एज सिस्टमा नेचरे. द बुक वाज नेम्ड एज सिस्टमा नेचरे, एंड द बुक केम इन द ईयर 1758. बुक कौन से साल में आई? 1758. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर. अभी मैंने यहां पे कार्लस लिनियस की 3 बुक्स के नाम मेंशन कर दिए. एक बुक का नाम है स्पीसीज प्लैनेटरम, दूसरी बुक का नाम है फिलोसोफिका बॉटनिका, और तीसरी बुक का नाम है सिस्टमे नेचरे. मैंने ईयर भी मेंशन कर दिया. इट वाज इन द ईयर 1758, 1751, 1753. अब इस बुक में क्या क्या है? तो अगर आपको पूछा जाता है कि यार सिस्टम में नेचर में क्या था, तो आप बोल सकते हो कि उसमें साइंटिफिक नेम्स थे. कितनी एनिमल स्पीसीज के? तो 4326 एनिमल स्पीसीज के साइंटिफिक नेम्स थे, रिटन बाय कार्लस लिनियस. ओके, स्पीसीज प्लैनेटरम में क्या था? तो स्पीसीज प्लैनेटरम में भी साइंटिफिक नेम्स थे. कितने? 5900. किसके? प्लांट स्पीसीज के. ये डिफरेंस दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि यहाँ पे प्लांट स्पीसीज का नाम दिया था और यहाँ पे एनिमल स्पीसीज के नाम दिए थे. ठीक है, फिलोसोफिका बॉटनिका में क्या था? तो फिलोसोफिका बॉटनिका में नाम नहीं थे, खाली प्रिंसिपल थे, रूल्स थे, किस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाएगा, किस तरीके से साइंटिफिक नेम्स दिए जाएंगे. गेटिंग द डिफरेंस? ओके, और बोहिन ने क्या काम किया था? बोहिन ने प्रपोजल रखा था इन द बुक पाइनेक्स. सो दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर. डन डन, सिंपल एंड इजी. क्लियर है? सो नाउ व्हाट हैपेंड इज, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, ओके, वैसे वैसे जो रूल्स थे, जो प्रपोजल्स थे, ओके, बाय दी बोहिन है या फिर बाय दी कार्लस लिनियस है, उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया. एंड दे सेट अप कोड्स फॉर इट, दे सेट अप ग्रुप्स और इंस्टीट्यूट्स फॉर इट, जो क्या करेंगे? स्पेसिफिकली नामकरण करेंगे. दे वुड नेम द ऑर्गेनिज्म. ओके, तो उनने एक बॉडी बना दी, एक इंस्टीट्यूट बना दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जिसका मेन काम क्या था? डिपेंडिंग ऑन द रूल्स रेगुलेशंस दे वुड नेम द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो आई वुड नेम दोज ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन जिनका स्पेसिफिक काम क्या होता है? नामकरण करना, नोमेनक्लेचर करना. सो देयर आर 5 कोड्स. देयर आर 5 कोड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स. इनके अलावा कोई नेमिंग नहीं कर सकता. ये जो ग्रुप्स है, कोड्स है, इनके अलावा कोई नेमिंग नहीं कर सकता है. तो आई पुट इट एज कोड्स फॉर standardization of names. Clear है? 5 codes है. There are 5 codes. There are 5 codes for the standardization of names. सो पहला कोड या पहले ग्रुप की अगर मैं बात करूं, सो दैट इज रिलेटेड टू द प्लांट.
and it is termed as ICBN, that is International Code for Botanical Nomenclature. So we have ICBN, ठीक है, that is International Code of Botanical Nomenclature, International Code of Botanical Nomenclature, ठीक है, ICBN, ठीक है. अच्छा, बट ऑब्वियसली दिस इज फॉर होम, दिस इज फॉर दी प्लांट्स, ये प्लांट्स के लिए हो गया क्योंकि मैं बॉटनी की बात कर रहा हूँ, तो ये प्लांट्स के लिए हो गया. अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्लांट्स. सो प्लांट्स के लिए जो सेटअप किया था दैट इज ICBN, ठीक है. सेकेंड ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं सो दैट इज ICNCP, ICNCP, ठीक है. नाउ ICNCP स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स. So this is international codes international code for nomenclature of कल्टिवेटेड क्रॉप, ठीक है. मतलब कल्टिवेटेड क्रॉप के लिए कल्टिवेटेड प्लांट्स, ठीक है. सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, ICNCP, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ठीक है. दूसरे कोड की बात करते हैं. तो सेकेंड कोड इज ICZN. So ICZN is for whom? So ICZN is for International Code of Zoological Nomenclature. International Code of Zoological Nomenclature, ठीक है. तो आपको पता चल गया जूलॉजी मतलब किसकी बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है. सो दिस कोड इज स्पेसिफिकली फॉर एनिमल्स, दिस इज फॉर नेमिंग द एनिमल्स. सो ICZN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है. फिर देखते दूसरा ICNB. We have one more code that is ICNB. So ICNB किसके लिए? That is International Code for Nomenclature ऑफ बैक्टीरिया को नाम देने के लिए जो कोड्स है, ओके, दैट इज ICNB. ये जो ग्रुप है, ये जो कोड है, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को नाम देने का काम करेगा. इसका नाम है ICNB. सो विल पुट इट हियर. दिस इज फॉर दी, देयर आर 5 कोड्स. कितने हुए? 4 कोड्स हुए. एक और कोड लिख लेते हैं. We have one more, that is ICTV. So ICTV is for whom? So that is International Code
और इंटरनेशनल कमिटी इंटरनेशनल कमिटी फॉर टेक्सोनॉमी, फॉर टेक्सोनॉमी वर्ड आपको पता होना चाहिए क्या होता है टेक्सोनॉमी। फॉर टेक्सोनॉमी वी से क्या आएगा, वी से वायरस। तो वायरस को नाम देने के लिए भी वी हैव अ कोड, दैट इज ICTV। क्लियर है? सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर वायरस। ठीक है, सो नाउ यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि यार प्लांट्स को अगर नाम देना है तो कौन सा कोड काम में आएगा, कौन सा ग्रुप काम में आएगा, तो ICBN है, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। कल्टिवेटेड प्लांट्स की बात करते हैं, कल्टिवेटेड प्लांट्स खेती में जो यूज किए जाते हैं, एग्रीकल्चर में जो यूज किए जाते हैं फॉर ग्रेन्स, फॉर फूड, सो दैट इज गवर्न्ड बाय ICNCP, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स का अगर नाम देना है, कोई नया एनिमल पता चला उसका नाम अगर रखना है तो कौन नाम रखेगा, सो दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अगर कोई बैक्टीरिया के बारे में पता चलता है, कोई नया बैक्टीरिया जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था, अभी पता चलता है, उसको तो नाम रखना पड़ेगा। तो नाम कौन रखेगा, सो नाम रखेगा ICNB, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। और अगर वायरस की बात करते हैं तो वायरस के लिए वी हैव इंटरनेशनल कमिटी फॉर टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस। सो दिस आर द 5 कोड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स। ठीक है, ये कोड्स के ही बेसिस पे नाम दिए जाएंगे। ठीक है, डन। सो ये नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न द नेम्स। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां पे से आ सकता है कि इनमें से कौन सा कोड इज एप्लीकेबल फॉर यूकैरियोट्स। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मैंने 5 कोड्स लिखे इनमें से कौन से कोड्स आर एप्लीकेबल फॉर यूकैरियोट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं। यूकैरियोट्स आर डेवलप्ड सेल्स, दे हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो प्लांट्स के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, तो यार ये एप्लीकेबल है फॉर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कोड्स। कल्टिवेटेड प्लांट्स के पास भी होता है और एनिमल्स के पास भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तो यूकैरियोट्स के लिए जो कोड्स एप्लीकेबल है वो है ICBN, ICNCP एंड ICZN। ठीक है, ये दोनों किसके लिए, दिस आर फॉर प्रोकैरियोट्स, दिस आर फॉर प्रोकैरियोट्स। डन। ओके, so as we were talking about the binomial nomenclature, मैंने बोला था bi means 2, nomenclature is name, so the organism is supposed to have 2 names. The organism is supposed to have 2 names. किस तरीके से 2 नाम लिखेंगे अपन, तो देखो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैंगो जो है, मैंगो इज अ कॉमन नेम। तो मैंगो का एक साइंटिफिक नेम है, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। क्या साइंटिफिक नेम है, मैंगीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। अगर आप यहां पे ध्यान दो तो मैंने फर्स्ट अल्फाबेट को ही कैपिटल लिखा है, बाकी के अल्फाबेट्स को मैं स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूं। ठीक है, खाली फर्स्ट अल्फाबेट यहां पे कैपिटल में था, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में। और जब भी आप इसे बुक में लिखते हो या बोर्ड पे लिखते हो या कहीं पे भी लिखते हो तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरलाइन इट। आपको इसको इंडिविजुअली अंडरलाइन करना पड़ेगा, मतलब इसको अंडरलाइन करो और इसको अंडरलाइन करो अलग अलग। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये चीज 2 नाम हो गए, तो उसमें जो पहला नाम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग, द फर्स्ट नेम। सो द फर्स्ट नेम इज रिप्रेजेंटिंग द जेनेरिक नेम, दिस इज द जेनेरिक नेम। ठीक है, और जो सेकंड नेम है पीछे की तरफ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज एपिथेट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज एपिथेट।
स्पीसीज एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम्स में जब आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हो तो पहला नाम किसको इंडिकेट करेगा, जेनेरिक नेम या फिर जीनस को इंडिकेट करेगा, और दूसरा नेम किसको इंडिकेट करेगा, स्पीसीज को इंडिकेट करेगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्लियर है। अच्छा, अभी यहाँ पे आप कितने अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, ये भी एक रूल है, कितने अल्फाबेट्स यूज किए जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं मैक्सिमम अल्फाबेट्स, ओके, जो यूज किए जा सकते हैं दैट इज 12। मैक्सिमम अल्फाबेट्स दैट कैन बी यूज्ड इज 12 एंड मिनिमम अल्फाबेट साइंटिफिक नेम लिखने के लिए जो आप यूज कर सकते हो दैट इज 3। मैक्सिमम अल्फाबेट्स कितने हैं, 12 आप यूज करोगे, और मिनिमम कितने करने हैं, 3 करने हैं, ठीक है। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए देयर आर 76 रूल्स, ओके, एप्लीकेबल है 76 रूल्स एंड आर्टिकल्स, बट अपन सबकी बात नहीं करेंगे, विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट वंस। सो देयर आर, यहां पे मैं लिख देता हूं 76 रूल्स या फिर क्राइटेरिया, ओके, या फिर आई विल पुट इट मोर स्पेसिफिक एज आर्टिकल्स, जिसके बेसिस पे क्या होता है, नामकरण होता है। तो वी कैन नॉट डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग राइट नाउ, ओके। तो मैं इतना ही रखता हूँ, थोड़े बहुत के बारे में अपन बात करेंगे। सो इज इट क्लियर, मैक्सिमम 12 होना चाहिए और मिनिमम कितना अल्फाबेट्स होने चाहिए, 3 अल्फाबेट्स होने चाहिए। सो अल्फाबेट मैक्सिमम 12, मिनिमम 3, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, अगर हैंड रिटन है तो क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली अंडरलाइन, ईच वर्ड शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन, सेपरेटली आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखिए, अगर प्रिंट करवा रहे हो, इफ दिस इज बीन प्रिंटेड, अगर आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो तो इट शुड बी इन इटैलिक्स, इट शुड बी इन इटैलिक्स, ठीक है। और दूसरी बात क्या याद रखिए, ओनली द फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी इन कैपिटल्स, ओनली द फर्स्ट अल्फाबेट should be in capitals, ठीक है, should be in capitals। एक और चीज अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, साइंटिस्ट का नेम, ओके, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट कैन बी रिटन आफ्टर द स्पीसीज एपिथेट, इसके बाद अपन लिख सकते हैं, ओके, एंड इट शुड बी रिटन इन द एब्रीवेटेड फॉर्म, इट शुड बी रिटन इन द एब्रीवेटेड फॉर्म, ठीक है। सो मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, यानी लाइन को मैं रब करता हूँ, आप कॉपी कर लेना इसे वीडियो को पॉज करके। सो आफ्टर बायोलॉजिकल नेम, साइंटिस्ट या फिर ओके ठीक है, साइंटिस्ट और ऑथर नेम can also be written, ठीक है, लिख सकते हैं, बट इट शुड बी रिटन इन दी एब्रीवेटेड फॉर्म, बट इट शुड बी रिटन इन abbreviated form, it should be written in abbreviated form, ठीक है। इट शुड नॉट बी अंडरलाइंड, नॉट अंडरलाइंड, एंड इट शुड नेवर बी रिटन, आई एम सॉरी, इटैलिक्स में नहीं होना चाहिए, नॉट
इन इटैलिक्स, जैसे आप यहाँ पे इटैलिक्स में मेंशन करने को बोला था, इट शुड नॉट बी इन इटैलिक्स एंड इट शुड बी रिटन इन रोमन, इट शुड बी रिटन इन रोमन। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आप साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हो तो कहां लिखोगे? आपका जो बायोलॉजिकल नेम होगा उसके पीछे अपन लिख सकते हैं, ठीक है। और जब आप लिखोगे तो इट शुड बी इन दी एब्रीवेटेड फॉर्म। कौन से फॉर्म में होना चाहिए? एब्रीवेटेड फॉर्म में होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अंडरलाइन, आप उसको अंडरलाइन नहीं करोगे, जैसे इसको अंडरलाइन करा था वैसे उसको अंडरलाइन नहीं कर सकते हो। एंड इट शुड नॉट बी इन इटैलिक्स, इट शुड बी इन एब्रीवेटेड फॉर्म एंड इट शुड बी इन रोमन्स। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये साइंटिफिक नेम है अगर, तो इसके पीछे अगर मुझे लिखना है तो आई वुड बी राइटिंग इट एज लीनियस, आई पुट इट एज LINN। ठीक है, सो ये क्या हो गया? बायोलॉजिकल नेम भी हो गया और बायोलॉजिकल नेम के साथ साइंटिफिक नेम भी आ गया। तो इट इज रिटन इन रोमन्स एंड इट इज नॉट इन दी एब्रीवेटेड फॉर्म, आई एम सॉरी, इट इज इन दी एब्रीवेटेड फॉर्म। क्लियर है? डन। सो दिस आर सम ऑफ द रूल्स। फिर से देख लेते हैं कि आप साइंटिफिक नेम्स में अल्फाबेट्स कितने यूज कर सकते हो? मैक्सिमम 12 अल्फाबेट यूज कर सकते हो, मिनिमम कितने? 3 करने हैं आपको। अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो ईच वर्ड शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड, अंडरलाइन किया सेपरेटली। अगर आप इस तरीके से करते हो, ये पूरा एक ही अंडरलाइन हो गया, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, मतलब दोनों वर्ड के बीच में गैप होना चाहिए। अगर आप प्रिंट करते हो तो इट शुड बी इन इटैलिक्स, अगर आप प्रिंट करोगे तो इटैलिक्स में होना चाहिए। आफ्टर बायोलॉजिकल नेम अगर आपको लिखना है तो आप साइंटिस्ट या ऑथर का नाम भी लिख सकते हो, बट इट शुड बी इन द एब्रीवेटेड फॉर्म, रोमन्स में होना चाहिए, रोमन लैंग्वेज में होना चाहिए। इटैलिक्स में नहीं लिखना है एंड अंडरलाइन नहीं करना है, जैसे आपने इसको अंडरलाइन किया था। सो दिस वाज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय whom? बाय कार्लस लीनियस। ओके, और 76 रूल्स एंड आर्टिकल्स के ऊपर ये बेस्ड है। वी कैन नॉट डिस्कस ईच एंड एवरी आर्टिकल राइट नाउ। क्लियर है? सो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द जीनस नेम or the generic name and this is the species name or the specific epithet. Okay, good. So now we'll talk about binomial हो गया, अब trinomial की बात करते हैं। ठीक है, तो ट्राइनोमियल में क्या लिखेंगे? जैसे अभी एक मैंने बोला यार जीनस नेम होगा और स्पीसीज नेम होगा, तो ट्राइनोमियल में क्या लिखेंगे? तो ट्राइनोमियल में स्पीसीज के बाद आ जाएगा सब स्पीसीज। क्या आ जाएगा? सब स्पीसीज। एंड इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट लेमार्क। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट नोन एज लेमार्क। ठीक है, इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? तो इट वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस एंड दिस इज गिवन बाय लेमार्क। ठीक है, तो क्या क्या यूज करेंगे? तो फर्स्ट जो नाम होगा दैट इज गोइंग टू बी दी जेनेरिक नेम, जो अपनी बात होगी। फर्स्ट इज जेनेरिक नेम। सेकंड क्या होता है? स्पीसीज एपिथेट होता है। क्या होता है? स्पीसीज एपिथेट। और ट्राइनोमियल में एक और एंट्री होगी किसकी? सो सब स्पीसीज, यू कैन यूज दी सब स्पीसीज, या फिर सब स्पीसीज इज फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए सब स्पीसीज आप बोलोगे और प्लांट्स के लिए क्या बोलोगे? वैरायटी। तो प्लांट्स के लिए तीसरी कैटेगरी कौन सी है? वैरायटी की है। और एनिमल्स के लिए तीसरी कैटेगरी कौन सी है? सब स्पीसीज की। ठीक है, सो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो आई टॉक अबाउट द क्रो। क्रो की बात करते हैं।
सो अगर मैं क्रो की बात करता हूं तो क्रो का साइंटिफिक नेम क्या है? तो क्रो का साइंटिफिक नेम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, ठीक है। कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, उसका जो सब स्पीसीज नेम है दैट इज ऑल्सो स्प्लेंडेंस, ठीक है। सो क्रो इज कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, या फिर आप दो यूज करना चाहते हो आप कॉर्वस स्प्लेंडेंस भी बोल सकते हो, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ क्रो। फिर इफ आई टॉक अबाउट द साइंटिफिक नेम ऑफ गोरिल्ला, गोरिल्ला के अगर साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, सो गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम है गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। साइंटिफिक नेम ऑफ गोरिल्ला इज, आई एम गोइंग टू गिव यू सम टर्म्स आफ्टर दिस, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूं आपको। गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट कैबेज, अगर कैबेज की बात करते हैं, कैबेज इज पत्ता गोभी। सो अगर कैबेज की बात करते हैं तो कैबेज का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका okay, it is Brassica oleracea, Brassica oleracea, ओके। और जो वेराइटी, यहां पे मैं सब स्पीसीज नहीं बोलूंगा, आई हैव टू मेंशन इट एज वेराइटी, तो वेराइटी का नाम है कैपिटिटा, कैपिटाटा, नॉट कैपिटिटा, कैपिटाटा, ठीक है। कैबेज का अगर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर देखते हैं तो उसका जेनेरिक नेम क्या है? ब्रासिका, स्पीसीज एपिथेट क्या? ओलेरेसी, और वैरायटी क्या है? वैरायटी यूज करेंगे क्योंकि कोई प्लांट है, तो वैरायटी क्या है? कैपिटाटा। गोरिल्ला का जेनेरिक नेम देखेंगे तो गोरिल्ला, स्पीसीज एपिथेट भी गोरिल्ला एंड सब स्पीसीज भी गोरिल्ला। अगर क्रो का देखते हैं तो जेनेरिक नेम कॉर्वस, स्पीसीज एपिथेट स्प्लेंडेंस एंड सब स्पीसीज भी क्या हुआ? स्प्लेंडेंस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, एंड इट वाज गिवन बाय whom? इट वाज गिवन बाय लेमार्क, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि क्रो के केस में आप देख रहे हो तो स्पीसीज एपिथेट और सब स्पीसीज क्या है? सेम है। स्पीसीज एपिथेट और सब स्पीसीज सेम है। तो अगर ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका स्पीसीज एपिथेट और सब स्पीसीज सेम अगर होता है, तो यहां पे भी यूज अ टर्म दैट इज एंटोनियम। क्या बोलते हैं उसे? एंटोनियम, आई एम सॉरी, इफ इट इज सेम वी टर्म इट एज ओटोनिम। क्या कहा जाता है? ओटोनिम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ this is in the case of crow, if species epithet and subspecies या फिर variety are named same, so that condition is termed as ऑटोनीम। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज ऑटोनीम। अगर स्पीसीज एपिथेट स्प्लेंडेंस एंड सब स्पीसीज या फिर वेराइटी अगर सेम है, आर नेम्ड सेम, तो वी टर्म दैट कंडीशन एज ऑटोनीम, ठीक है। अब गोरिल्ला वाले केस में आप देख रहे हो तो गोरिल्ला में जेनेरिक नेम, स्पीसीज एपिथेट और सब स्पीसीज भी सेम है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, मतलब गोरिल्ला में ऑटोनीम तो दिख ही रहा है, गोरिल्ला में ऑटोनीम तो दिख ही रहा है बिकॉज ये दोनों सेम है। तो अगर मैं बोलूं यहां पे if
जेनेरिक नेम एंड स्पीसीज एपिथेट इज सेम। अगर जेनेरिक नेम गोरिल्ला गोरिल्ला दोनों सेम है, जेनेरिक नेम एंड स्पीसीज एपिथेट इज सेम, तो उस केस में विल यूज अ टर्म दैट इज टोटोनी। क्या कहा जाएगा? टोटोनी। यहां पे मैं लिखता हूं TAU, दैट इज टोटोनी। सिंपल एंड इजी कि नहीं समझ में आया? अगर स्पीसीज और सब स्पीसीज का नाम सेम है तो विल टर्म इट एज ऑटोनीम, और अगर जेनेरिक नेम और स्पीसीज एपिथेट सेम है तो विल टर्म इट एज टोटोनीम। ठीक है, तो गोरिल्ला में अगर आप देखो तो गोरिल्ला में आपको टोटोनीम भी दिख रहा है, ये दोनों सेम है, और ये दोनों भी सेम है तो ऑटोनीम भी हो गया। गोरिल्ला शोज द साइंटिफिक नेम ऑफ गोरिल्ला शोज ऑटोनीम एंड टोटोनीम। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो लेट्स मूव अहेड। दिस वाज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। एक और देखते हैं, ऑटोनीम हो गया, टोटोनीम हो गया, अब एक देखते हैं विच इज होमोनीम। होमोनीम किसे कहा जाएगा? अगर दो चीजों को एक ही साइंटिफिक नेम दिया हो, homonym. What is homonym? If two organism share the same scientific name, if two organisms share the same scientific name, it is termed as homonym. जैसे कि I'll write a scientific name that is Prunus dolci. क्या लिखेंगे? Prunus dolci. ठीक है, if I talk about Prunus dolci, ठीक है, so Prunus dolci was the scientific name for, ये दो चीजों का साइंटिफिक नेम का काम कर रहा था। वन, इट वॉज फॉर आलमंड, ओके, एंड अनदर इज प्लम, ओके, आलमंड एंड प्लम। क्लियर है? मतलब अर्लियर, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, अर्लियर प्लम वॉज ऑल्सो नोन एज प्रूनस डुल्साई and almond was also known as Prunus dulci. तो उस केस में we use a term homonym. तो ये दोनों क्या थे? एक दूसरे के होमोनिम थे, बिकॉज इनका साइंटिफिक नेम क्या था? सेम था. सो इफ two organisms are sharing the same scientific name, we term it as homonym. ठीक है, तो आलमंड भी प्रूनस डुल्साई था, प्लम भी प्रूनस डुल्साई था, बट फिर बाद में क्या किया? इसको चेंज कर दिया. अभी जो प्लम है, प्लम इज नोन एज प्रूनस डोमेस्टिका. प्रूनस डोमेस्टिका. ठीक है, समझ में आ गया? तो अर्लियर प्रूनस डुल्साई किसका नाम था? आलमंड का भी था, प्लम का भी था, इसलिए वी टर्म इट एज होमोनिम, बिकॉज इफ टू ऑर्गेनिज्म शेयर द सेम साइंटिफिक नेम तो उसे होमोनिम कहा जाता है. बट अभी क्या कर दिया? चेंज कर दिया. अभी प्लम का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज प्रूनस डोमेस्टिका. ठीक है, क्लियर है? सो मैंने यहां पे तीन टर्म्स लिखे थे. होमोनिम से पहले क्या लिखा था? ऑटोनीम है, और ऑटोनीम के बाद अपन ने लिखा टोटोनीम. ठीक है, सो एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इसके बारे में याद रखनी है, दैट इज होमोनीम जो है
इट इज नॉट एप्लीकेबल, इसको आप यूज नहीं कर सकते हो. ओके, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन बॉटनी एज वेल एज इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर जूलॉजी. होमोनेम बॉटनी में भी यूज नहीं किया जा सकता है, जूलॉजी में भी यूज नहीं किया जा सकता है. ऑटोनेम की अगर बात करते हैं तो ऑटोनेम कैन बी यूज्ड फॉर बॉटनी, इन बॉटनी फॉर नेमिंग प्लांट्स एंड इन जूलॉजी एज वेल. टॉटोनेम की अगर मैं बात करता हूं तो टॉटोनेम कैन नॉट बी यूज फॉर बॉटनी, इसको बॉटनी में यूज नहीं किया जाता है, बट इट कैन बी यूज्ड इन जूलॉजी. ठीक है, इतना बात आपको दिमाग में बिठा लेना है. क्या कि टोटोनेम्स बॉटनी में यूज नहीं किए जाते, जूलॉजी में यूज किए जा सकते हैं. ऑटोनेम्स बॉटनी में यूज कर सकते हैं, जूलॉजी में भी यूज कर सकते हैं. एंड होमोनेम्स बॉटनी में भी यूज नहीं करेंगे और जूलॉजी में भी यूज नहीं करेंगे. ठीक है, सिंपल एंड इजी. सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट वन मोर थिंग, दैट इज principle of priority. We'll talk about principle of priority. Principle of priority. What is principle of priority? So priority आपको पता है first come first basis पे. Okay, so let's say fungi जो है, we have Albugo candida. ठीक है, और दूसरा मैं लिखता हूं सिस्टोपस कैंडिडस. ठीक है, सो आई हैव टू अंडरलाइन देम इंडिविजुअली. ओके, नाउ जैसे कि अगर कोई फंगाई और उसका एक ही फंगाई के दो नाम, इफ अ सिंगल फंगाई इज शेयरिंग टू नेम्स, ओके, आल्बुगो कैंडिडा एंड सिस्टोपस कैंडिडस. ठीक है, वन फंगाई शेयरिंग टू नेम्स, तो यार कौन सा नाम उसको एप्लीकेबल है? शुड आई कॉल दैट फंगाई सिस्टोपस कैंडिडस या फिर शुड आई कॉल इट एज आल्बुगो कैंडिडा? क्या नाम से उसे बुलाया जाएगा? क्योंकि दोनों साइंटिफिक नेम्स है. ठीक है, दोनों साइंटिफिक नेम्स है. सिस्टोपस भी साइंटिफिक नेम है और आल्बुगो भी क्या है, साइंटिफिक नेम है. तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी के हिसाब से आपको ये याद रखना है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म के दो साइंटिफिक नेम है, इफ ऑर्गेनिज्म consist of two scientific names. If an organism consists of two scientific names, तो उस केस में क्या करें? तो आपको देखना है कि यार कौन सा साइंटिफिक नेम पहले दिया गया था. आउट ऑफ द टू आल्बुगो कैंडिडा एंड सिस्टोपस कैंडिडस में से कौन सा साइंटिफिक नेम उस ऑर्गेनिज्म को पहले दिया गया? यू हैव टू फाइंड दैट आउट. तो आल्बुगो कैंडिडा पहले दिया है, इट वॉज गिवन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस. प्रियर जो नाम था दैट वॉज आल्बुगो कैंडिडा. तो आपका मेन साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? आल्बुगो कैंडिडा इज योर मेन साइंटिफिक नेम. तो जो बाद में दिया गया था साइंटिफिक नेम दैट इज सिस्टोपस कैंडिडस, तो दैट बिकम्स द सिनोनियम. ये क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी दी सिनोनियम. समझ में आया? तो जो आपका मेन साइंटिफिक नेम है वो है जो पहले दिया गया था, वो आपका मेन साइंटिफिक नेम हो गया. ओके, दैट इज आल्बुगो कैंडिडा. और जो दूसरा नाम दिया गया था उसको आप यूज कर सकते हो एज अ सिनोनियम. ओके, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज द मेन साइंटिफिक नेम. द मेन साइंटिफिक नेम इज आल्बुगो कैंडिडा, बट दिस कैन बी यूज्ड एज द सिनोनियम. ठीक है, क्लियर है? सो प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी के हिसाब से अगर ऑर्गेनिज्म के दो नाम है, साइंटिफिक नेम्स है, टू साइंटिफिक नेम्स, वन इज
मैंने यहाँ पे फंगाई का एग्जांपल लिया, मैंने बोला अल्बुगो कैंडिडा और सिस्टोपस कैंडिडस, ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो उसमें ये देखा जाएगा कौन सा साइंटिफिक नेम पहले दिया गया था, ठीक है। तो पहले जो साइंटिफिक नेम दिया गया था दैट वाज अल्बुगो कैंडिडा, तो उसको ही यूज किया जाएगा एज द मेन प्रिंसिपल नेम, और जो सिस्टोपस कैंडिडस है उसको यूज किया जाएगा एज अ सिनोनिम, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल नेम। तो आप जब वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद आप क्या करोगे, आपको नोट्स बनाने, और नोट्स बनाने के बाद आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि जब आप साइंटिफिक नेम लिखते हो, ठीक है, तो आप थोड़ा रिसर्च करना और मुझे बताना। जब आप साइंटिफिक नेम लिखते हो तो मैंने बोला कि जो मिनिमम अल्फाबेट्स आप यूज कर सकते हो दैट शुड बी 3, और जो मैक्सिमम अल्फाबेट्स आप यूज करोगे दैट इज गोइंग टू बी 12। तो आपको कोई एक ऐसा साइंटिफिक नेम बताना है मुझे जिसमें मिनिमम अल्फाबेट यूज हुए हो। मिनिमम मतलब इट कुड बी इन द जीनस नेम में मिनिमम हो सकते हैं, या फिर स्पीशीज नेम में मिनिमम हो सकते हैं, और एक ऐसा नाम बताना है जिसमें मैक्सिमम अल्फाबेट्स यूज किए गए हो, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क। थोड़ा बहुत नेट पे सर्च करना, और सर्च करने के बाद मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है जिसमें मिनिमम अल्फाबेट्स है और मैक्सिमम अल्फाबेट्स है, ठीक है। सो आई कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड मूव अहेड एंड टॉक अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। चलो बाय बाय।